بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا تعلق ایک اچھے گھرانے سے تھا۔ باپ غریب ضرور تھا مگر وہ ہمیں اپنی محنت کی کمائی کھلاتا تھا، جبکہ میرا ایک چاچا تھا جو کہ ہم سے بہت امیر تھا اور اس کے بچے ہمارے مقابلے میں بہت بہتر زندگی گزار رہے تھے، مگر چاچا کے یہاں حرام حلال کی کوئی تمیز نہ تھی۔ ابو حق حلال کی روٹی روزی کماتا کماتا وقت سے پہلے ہی بوڑھا ہو گیا تھا اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے بیماری نے زور پکڑ لیا اور ہمارے پاس اتنے پیسے بھی نہیں ہوتے تھے کہ ہم اس کا علاج کر پاتے، اور پھر اسی قسم پرسی کی زندگی میں ایک دن وہ ہمیں اکیلا چھوڑ کر دنیا سے رخصت ہو گیا اور گھر میں فاقوں کی نوبت آ گئی۔ میں گھر میں سب سے بڑی تھی اور میرے باقی بہن بھائی چھوٹے تھے۔ ایسے میں امی نے کہا کہ وہ لوگوں کے گھروں میں کام کر لے گی تاکہ گھر کا گزارا چلتا رہے، مگر میں نے امی کو کام کرنے سے منع کر دیا کیونکہ میں نہیں چاہتی تھی کہ میری امی بھی ابو کی طرح بیمار پڑ جائے اور ابو کی طرح وقت سے پہلے یہ دنیا چھوڑ جائے۔ اس لیے میں نے خود ہی نوکری کرنے کا سوچ لیا۔ میں نے ایف اے کیا ہوا تھا اور میرے باپ کو شوق تھا کہ میں ڈاکٹر بنوں، مگر اب میرا باپ ہی نہیں رہا اور نہ میرے پاس اتنے پیسے تھے کہ میں اپنے باپ کا سپنا پورا کر سکوں۔ اس لیے میں نے نوکری تلاش کرنا شروع کر دیا، مگر میری تعلیم بہت کم تھی، مجھے کوئی بھی نوکری دینے کو تیار نہیں تھا۔ اس موقع پر امی نے کہا کہ تم اپنے چاچا سے بات کر لو، شاید وہ کہیں پر تمہاری نوکری لگوا دے، مگر یہ سن کر میں رونے لگی اور امی سے بولی کہ میں افضل چاچا کی سگی بھتیجی ہوں اور وہ اپنے بھائی کے جنازے پر دیکھ کر گیا تھا کہ ہم اتنے مشکل میں ہیں، مگر اس کے باوجود وہ مڑ کر کبھی ہمارے گھر نہیں آیا اور نہ ہی اس نے کبھی پوچھا کہ ہم زندہ ہیں یا مر گئے ہیں۔ یہ سن کر امی کی بھی آنکھیں بھر آئے۔ اس دن کے بعد امی نے چاچا کے متعلق کوئی بات نہیں کی اور پھر مجھے ایک فیکٹری میں نوکری مل ہی گئی۔ وہاں مجھے اتنی تنخواہ مل جاتی تھی کہ ہمارے گھر اچھا چلنے لگا اور اب امی بھی بے فکر ہو گئی، مگر ایک دن فیکٹری کے مالک نے مجھے کام کرتے دیکھ لیا تھا اور وہ مجھے روز روز اپنے دفتر میں بلانے لگا۔ اس نے اب تک مجھ سے کچھ نہیں کہا تھا، مگر اس کے دیکھنے کا انداز میں بھانپ گئی تھی۔ اس لیے میں نے ایک اور نوکری تلاش کرنا شروع کر دی تاکہ یہ فیکٹری والی نوکری چھوڑ دوں۔ اس سلسلے میں میری ایک دوست نے مدد کر دی اور میں جلد ہی ایک اسکول میں پڑھانے لگی۔ فیکٹری چھوڑنے کے کئی مہینوں تک مالک ایک لڑکی کو میرے گھر بھیجتا رہا تھا کہ میں فیکٹری واپس آ جاؤں، مگر میں نے ہر بار انکار کر دیا اور بڑی مشکل سے میری جان چھوٹی۔ اسکول کی نوکری میں میری تنخواہ کم تھی، مگر میں نے گزارا کر لیا۔ ویسے بھی میں اپنے چاچا کی بیٹی کی طرح فیشن نہیں کرتی تھی، میں تو اسکول بھی جاتی تھی تو بالکل سادہ رہتی تھی، جبکہ میرے چاچا کی بیٹی تو گھر میں بھی بن سور کر رہتی تھی، اور کیوں نہ رہتی، کیونکہ اس کا باپ امیر تھا اور وہ اس کے پیسے پر عیش کر رہی تھی۔ میرے باپ کے مرنے کے بعد میرے چاچا بھی ہمارے گھر نہیں آئے، مگر ہم چاچا کے دکھ سکھ میں اس کے گھر چلے جاتے تھے کیونکہ ابھی ہمارا خون اتنا سفید نہیں ہوا تھا۔ میرے چاچا کی ایک ہی بیٹی تھی اور وہ میری دوست بھی تھی، مگر وہ امیر ہونے کی وجہ سے نخرے بھی کرتی تھی اور کیونکہ میں غریب تھی اسی لیے اس کی نخرے بھی برداشت کر لیتی۔ جب میں نوکری کر رہی تھی تو میں نے سنا کہ چاچا کی بیٹی امبر کا بڑا اچھا رشتہ آیا ہوا تھا۔ یہ خبر میں نے امی کو سنائی تو وہ بھی خوش ہو گئی اور مجھ سے کہا کہ چھٹی والے دن مبارکباد دینے جائیں گے، مگر یہ سن کر میرا منہ بن گیا اور میں نے امی سے کہا میں نے آپ کو یہ خبر اس لیے نہیں سنائی کہ آپ چاچا کے گھر مبارکباد دینے چل پڑے، وہ ہمارے گھر نہیں آتے تو ہم کیوں جائیں؟ مگر امی کہنے لگی پھر ان لوگوں اور ہم میں کیا فرق رہ جائے گا۔ امی کی یہ بات سن کر میں چپ ہو گئی اور چھٹی والے دن امی مجھے زبردستی چاچا کے گھر لے گئی، اور جب وہاں گئے تو گھر میں تو شادی کی تیاری شروع تھی۔ یہ دیکھ کر تو امی بھی ہکا بکا رہ گئی کیونکہ امبر نے تو کہا تھا کہ اس کی اگلے ہفتے شادی ہے۔ یہ سن کر امی نے چاچا سے گلہ کیا تو وہ کہنے لگا میں آپ کے گھر کارڈ دینے آ ہی رہا تھا کہ آپ لوگ ہمارے گھر آ گئے۔ چاچا کی بات سے صاف لگ رہا تھا کہ وہ ہمیں بہلا رہا تھا اور میری بولی بالی امی بہل بھی گئی۔ اسی وقت امبر اپنے سسرال والوں کی تعریف کرنے لگی کہ وہ بہت زیادہ امیر ہے اور مجھے شادی کے بعد الگ گھر لے کر دیں گے۔ یہ سن کر میں خاموش ہو گئی کیونکہ وہ مجھے جلانے کی
की कोशिश कर रही थी। वो मुझे अपने जेवरात और कपड़े दिखाने लगी। मैं कुछ देर ये सब देखती रही और फिर घर आ गई और आते ही अम्मी से कहा कि मुझे ऐसे शो मारने वालों के घर दोबारा नहीं जाना। उस दिन अम्मी ने कुछ नहीं कहा और चुप ही रही। शायद अम्मी को भी ये बात बुरी लगी थी। लेकिन 2 दिन बाद ही चाचा हमारे घर आया और हमें शॉपिंग कराने ले गया। मैं तो नहीं जाना चाहती थी, मगर अम्मी और मेरे छोटे बहन भाई चाचा की गाड़ी में बैठ गए और मुझे भी मजबूरन उनके साथ जाना पड़ा। उस दिन चाचा ने हम सब बहन भाइयों को दिल खोल कर शॉपिंग कराई और जब घर छोड़ने आया तो कहा कि तुम सब ने मेरी बेटी की शादी में ज़रूर आना है। उस दिन अम्मी ने कहा कि तुम्हारी नौकरी की वजह से हम तुम्हारे चाचा के घर रह तो नहीं सकते, मगर हर फंक्शन पर ज़रूर जाएंगे। उस दिन अम्मी और मेरे बहन भाई बहुत खुश थे, इसलिए मैं भी उनकी खुशी में खुश हो गई। चूँकि मेरी नई नई जॉब थी, इसलिए मुझे सिर्फ एक ही छुट्टी मिल सकती थी। इसलिए जिस दिन मेरे चाचा की बेटी की शादी शुरू हुई, हम सब वहाँ जाते और रात को घर आ जाते थे। अलबत्ता अंबर की निकाह के दिन मुझे छुट्टी मिल गई और हम सब सुबह सुबह चाचा के घर चले गए। लेकिन चाचा बहुत घबराया हुआ था। अभी मेहमान नहीं आए थे, इसलिए वो घर में अकेला था और मुझे अंबर भी कहीं नजर नहीं आ रही थी। मैंने चाचा से अंबर के बारे में पूछा तो चाचा बच्चों की तरह रोने लगा और कहा कि अंबर को कल से बुखार था और वो आज सुबह मर गई। ये सुनकर हम सब हक्का बक्का रह गए, क्योंकि एक जवान लड़की ऐसे कैसे मर सकती है, मगर एक बाप अपनी बेटी के बारे में कैसे झूठ बोल सकता था। ये सोचकर हम भी रोने लगे, क्योंकि अंबर बेचारी अपनी शादी पर बहुत खुश थी और आज वो मर गई। उसी वक्त घर में मेहमान आने लगे और चाचा घबरा गया और हमसे कहने लगा, अब मैं लोगों को क्या बताऊंगा, आए अभी बारात आ जाएगी और ये शादी वाला घर मातम वाला घर बन जाएगा और मेरी बेटी की ससुराल वाले तो मुझ पर यकीन ही नहीं करेंगे। ये कहकर चाचा रोने लगा। मैंने चाचा को चुप कराना चाहा तो चाचा ने मेरे हाथ पकड़ लिए। बेटा, घर मेहमानों से भर रहा है, मैं किस किस को जवाब दूंगा कि ये शादी नहीं हो सकती, क्योंकि मेरी बेटी मर गई है। ये दुनिया बहुत जालिम है। मेरी मासूम बेटी पर तरह तरह के इल्ज़ाम लगाएंगे कि शादी वाले दिन लड़की मर गई। यकीनन वो शादी नहीं करना चाहती थी, इसीलिए खुदकुशी कर ली। चाचा की बात सुनकर मैंने उससे पूछा, चाचा अब आप क्या चाहते हैं? ये सुनकर चाचा कहने लगा, बेटा अब मेरी इज्जत तुम्हारे हाथों में है। मेरी मासूम बच्ची पर ये इल्ज़ाम लगने से बचा लो और उसकी जगह तुम यहाँ शादी कर लो। तुम्हारे जाने के बाद मैं सबको अंबर के मरने की खबर सुना दूंगा और बाद में लोग मेरी बेटी पर इल्ज़ाम नहीं लगाएंगे। ये सुनकर मैं शशदुर रह गई। ऐसा कैसे मुमकिन था? मैं कैसे एक अनजान बंदे से शादी कर लूं? मगर मेरा चाचा तो मेरे कदमों में बैठ गया और मैंने चाचा की इज्जत रखने के लिए बिना दूल्हा देखे शादी कर ली और अपने ससुराल आ गई। मैंने चाचा की इज्जत रखने के लिए शादी तो कर ली, मगर यहाँ आकर मैं अपने फैसले पर पछताने लगी, क्योंकि मुझे दूल्हा देख लेना चाहिए था। आखिर ये मेरा हक था, मगर अब क्या हो सकता था? अब तो मैं उसकी निकाह में थी और ये रिश्ता नहीं तोड़ सकती थी। इसलिए मैं शुक्र करके बैठ गई और अपने कमरे को देखने लगी, जो कि बहुत खूबसूरत था। मैंने तो ऐसे कमरे ख्वाब में भी नहीं देखे थे। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मेरी ऐसी अचानक शादी हो जाएगी और मेरा इतना अच्छा नसीब होगा। अंबर एक हफ्ते पहले जो चीज़ मुझे दिखाकर जला रही थी, वो मेरे हिस्से में आएंगे। उस बेचारी ने तो ये सोचा भी नहीं होगा कि ये सब उसे पहनना नसीब नहीं होगा और वो मर जाएगी। अंबर की याद आती ही मैं उदास हो गई, क्योंकि वो जैसी भी थी, उसके साथ मेरा खून का रिश्ता था और मुझे उसकी अचानक मौत का दुख हुआ था। लेकिन ये किस्मत की बात है, वरना मुझ जैसी गरीब लड़की को इतना अच्छा रिश्ता सारी उम्र भर नहीं मिलना था। ये तो मेरा चाचा अमीर था, इसलिए चाचा ने अपनी बेटी के लिए इतना अच्छा रिश्ता तलाश किया था कि उसकी बेटी को कोई दुख न मिले और वो जिनसी खुशी रहे। मगर अब ये खुशी मेरी माँ के चेहरे पर थी, क्योंकि कोई भी खर्चा किए बगैर मेरी शादी हो चुकी थी और मेरा चाचा रो रहा था क्योंकि उसने इतना खर्चा किया, मगर उसकी बेटी मर गई। शायद ये शख्स मेरे नसीब में था। ये सोचकर मैं गहरी सोच में डूब गई और उसी वक्त दरवाजे पर दस्तक हुई और दूल्हा अंदर कमरे में आ गया। मैंने उसे देखा तो फौरन घूंघट गिरा दिया और वो भी आहिस्ता आहिस्ता चलता हुआ मेरे पास आ बैठा। शादी की पहली रात जब मैंने अपने शौहर को देखा तो मेरे होश उड़ गए। तुम नहीं, आप यहाँ क्या कर रहे हैं?
मैं सामने बैठे आदमी को देखकर जल्दी से खड़ी हो गई और वो मुझे देखकर मुस्कुराने लगा। अरे बैठ जाओ, अब तो तुम मेरी बीवी हो, अब तो नखरे मत करो। ये कहकर उस आदमी ने मेरा हाथ पकड़ना चाहा, मगर मैंने उसे हाथ लगाने नहीं दिया और मैं बेड से नीचे उतर आई और बोला कि मुझे नहीं पता था कि मेरी कज़न की शादी आपसे होने वाली थी। मेरी बात सुनकर वो फैक्ट्री का मालिक हंसने लगा और मुझसे कहा कि मैं तुम्हें पसंद करता था और तुमसे शादी करना चाहता था, इसलिए मैंने तुम्हारे चाचा से बात की और उसने मेरी शादी तुम्हारे साथ आसानी के साथ करा दी। ये सुनकर मैं सकते में आ गई और मुझे यकीन नहीं आ रहा था कि चाचा ने मेरे साथ इतना बड़ा धोखा किया था। लेकिन मैं आपको पसंद नहीं करती क्योंकि आप मेरे बाप की उम्र की हैं, इसलिए मैं इस शादी पर राजी नहीं और मैं ये घर छोड़कर जा रही हूँ। ये कहकर मैं उस घर से निकल आई और टैक्सी लेकर अपने चाचा के घर आ गई ताकि सारा सच जान सकूं। और जब मैं अपने चाचा के घर आई तो मेरे रही सही जान भी निकल गई, क्योंकि मेरे चाचा की बेटी मरी नहीं थी, बल्कि ये तो मेरा चाचा का प्लान था और वो दोनों बाप बेटी मिलकर खाना खा रहे थे। अपने चाचा की बेटी को जिंदा देखकर मुझे रोना आ गया। उन दोनों ने अपनी एक्टिंग से कैसे मुझे उल्लू बना दिया। काश मुझे उनकी एक्टिंग देखकर ही उसका प्लान समझ आ जाता, मगर देर अब भी नहीं हुई थी। ये सब अपने घर में मजे कर रहे थे और मैं क्यों उस बूढ़े फैक्ट्री मालिक की दूसरी बीवी बनकर उसके बच्चे पालती। ये मेरी जिंदगी थी, मुझे भी अपनी जिंदगी अपनी मर्जी से जीने का हक था। इसलिए जब चाचा ने मुझे अपने घर में देखा तो उसके चेहरे का रंग उड़ गया और अंबर मुझे यूं देखने लगी जैसे मैं मर गई थी। मैंने कहा, चाचा मुझे तुमसे इस झूठ की उम्मीद नहीं थी। मैंने रोते हुए चाचा का गिरेबान पकड़ लिया और चाचा घबरा गया। कैसा झूठ? मैंने तुमसे क्या झूठ बोला है? मैंने तो अच्छा किया है। तुम्हारा बाप होता तब भी वो तुम्हारे लिए इतना अच्छा रिश्ता न तलाश कर पाता। ये कहकर चाचा हंसने लगा और मेरे आंसू बहने लगे। मेरा बाप होता तो आज मैं ऐसे जहन्नम में न गई होती, मैंने चिल्लाकर कहा तो चाचा चुप हो गया। अगर ये इतना अच्छा रिश्ता था तो अपनी बेटी दे देते। ये सुनकर अंबर गुस्से में आ गई और कहने लगी, वो तुम्हारा आशिक था और मैं क्यों किसी बूढ़े से शादी करने लगी? मैं तो लव मैरिज करूंगी। और तुम वो घर क्यों छोड़ आई? इतने अमीर लोग थे तुम्हारे तो किस्मत जाग उठी थी। अब तो तुम्हारे ऐश होते और नौकरी से भी जान छूट जाती। ये सुनकर मैंने अंबर से कहा, मेरा बाप तुम्हारे बाप की तरह नहीं था कि पैसे की लालच में अपनी भतीजी की जिंदगी बर्बाद कर दी। मेरे बाप ने तो हमें हमेशा हलाल रिस्क खिलाया था और नसीहत की थी कि हमेशा खुद कमा कर खाना और लालच ना करना। ये सुनकर अंबर तो खामोश हो गई, लेकिन चाचा कहने लगा, हाँ मैंने उस फैक्ट्री के मालिक से पैसे लिए हैं, इसलिए तुम वापस ससुराल चली जाओ क्योंकि मैं उसके दिए सारे पैसे खर्च कर चुका हूँ। ये सुनकर मेरा पारा और चढ़ गया और कहा, चाचा तुमने पैसे लिए थे, अब पैसे वापस करने के लिए तैयार हो जाओ क्योंकि मैं तो उस बूढ़े से तलाक ले लूंगी, क्योंकि ये मेरी जिंदगी है और मैं इसकी मालिक हूँ। ये कहकर मैं चाचा को हैरान परेशान छोड़कर अपने घर आ गई और अपनी अम्मी को चाचा की करतूत की सारी कहानी सुना दी। चंद दिन बाद अम्मी से मशवरा किया और फिर उस बूढ़े आदमी से खला ली, क्योंकि मुझे अपने चाचा की तरह हराम पैसे का लालच नहीं था और न मैं उस बूढ़े की बीवी बनकर अपनी जिंदगी तबाह करना चाहती थी। जिंदगी एक बार मिलती है, इसे दूसरों के फैसले से नहीं गुजरना चाहिए।